जी हम असी मैथ्स की सैकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस असी मैथ्स दी टाइप स्टडी करांगे कि मैथ्स किहड़ी टाइप दी होंदियां हैं। हाँ जी, मेनली मैथ्स जिहड़ियां हैगियां ते किस टाइप दी होंदियां, रो मैट्रिक्स होंदी। आपां दी डिटेल नैक्सट स्लाइड से स्टडी करांगे। रो मैट्रिक्स की होंदी, कॉलम मैट्रिक्स की होंदी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की होंदी, स्क्वायर मैट्रिक्स की होंदी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होंदी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होंदी, नल और जीरो मैट्रिक्स की होंदी, मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की हुंदा, डायगनल मैट्रिक्स की होंदी, स्केलर मैट्रिक्स किहनूं कहंदे आ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होंदी। ये सारियां टाइप्स हैं। इन्हां नूं तुसीं इन्हां दे नाम तो ही जज कर सकते हो। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਜ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, a square matrix has the same number of rows and columns। यानी जे रो 3 हैगियां तो कॉलम भी 3 है, रो 2 हैगियां तो कॉलम भी 2 हैगे आ। ठीक है, जनरली ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ n क्रॉस n टाइप ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਵੀ n ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਵੀ n ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 0 -1 3 4 एलिमेंट्स है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। तो 2 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हैगी है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 2 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 2, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਟਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਵੀ 2 ਹੈਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕॉलम ਵੀ 2 ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ 3 1 2 3 एंड कॉलम्स भी है 3। ठीक है, तो यह हैगी 3 क्रॉस 3 टाइप की मैट्रिक्स, यानी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 3। ठीक है, ਤੇ ਐਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਕੋਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕੋਲਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਮ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ n ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ 1 ਕੋਲਮ ਹੈ। यानी आप जनरली कहते n क्रॉस 1, यानी रोज जिन्नियां मर्जी हो कॉलम एक ही होवे, उस मैट्रिक्स ਆਪਾਂ कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सारी मैट्रिक्स है एक ही कॉलम है, रोज 2 है, 2 क्रॉस 1 टाइप की मैट्रिक्स है तो एक कॉलम मैट्रिक्स है। सैकेंड 1 0 0 एलिमेंट्स है, एक ही कॉलम च लगे हुए हैं, ਇਹਦੇ रोज कितनियां हो गई 3 हो गई और कॉलम कितना हो गया 1 हो गया। तो 3 क्रॉस 1 टाइप की मैट्रिक्स है, ये सारी कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ही रो मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब जिस एक ही रो होंगी। ठीक है, कॉलम्स कितने भी हो सकते, यानी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स को ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ रो मैट्रिक्स है। ਤੇ ਸਾਡੇ मैट्रिक्स हैगी 1 0, यानी कॉलम कितने हैं 2 और रो कितनी 1, ਤੇ 1 क्रॉस 2 टाइप ਦੀ मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हैगी 1 2 3, रोज कितनियां हैगियां 1, कॉलम कितने हैगे 3, ਤੇ ਇਹ 1 क्रॉस 3 टाइप ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਸ 'ਚ ਰੋ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਲਮ 1 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ AIJ ਫਾਰਮ ਦੀ for which every entry of the main diagonal is 0। एंट्री ऑफ मतलब ਜਿਹੜੀ डायगोनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ डायगोनल ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डायगोनल ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ डायगोनल ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ डायगोनल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ डायगोनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਰੋ ਦਾ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ डायगोनल ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 0 ਹੋਣ।
यानी ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी जिथे आई जे दे इक्वल नहीं है वो सारे एलीमेंट 0 हैं, और जिथे ए इक्वल है उत्थे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिथे 0 नहीं है, इक्वल नहीं है, उत्थे सारे एलीमेंट 0 होन, उन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी दी डेफिनेशन मतलब तुसी प्रैक्टिकली देखो कि जिहदे विच डायगोनल दे विच कोई भी एलीमेंट हो, इस तो इलावा बाकी सारे 0 होन, उन्होंने ਅਸੀਂ डायगोनल मैट्रिक्स कहांगे। ठीक है, ए सॉरी 2 क्रॉस 2 टाइप दी मैट्रिक्स है, इस डायगोनल एलीमेंट है 4 ते 3, इस तो इलावा बाकी सारे 0 है। सेकंड जी मैट्रिक्स है, ਇਹਦੇ डायगोनल एलिमेंट है 2 -3 5, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ डायगोनल एलिमेंट है 0 7 6, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ डायगोनल ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਣ, ऐसी मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 क्रॉस 2 टाइप ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 क्रॉस 2 टाइप ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 2 rows 3 columns 2 क्रॉस 3 टाइप ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 3 क्रॉस 2 टाइप ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, 3 rows ਹੈ 2 columns ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 3 rows 3 into throws यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ all the elements on the main diagonal is equal to 1 and the rest equal to 0। ਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ 1 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 2 क्रॉस 2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, वो हैगी है। फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स दोनों 1 1 है, बाकी इस तो इलावा सारे 0 है। अभी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स तीनों 1 के इक्वल है, इस तो इलावा बाकी सारे 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 के इक्वल होन, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 के इक्वल होन, ऐसी मैट्रिक्स में ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ਦੀਆਂ, ਜਿਸ 1 क्रॉस 1 टाइप ਦੀ मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही एलिमेंट होएगा, ਤੇ ਉਹ डायगोनल एलिमेंट है, वो 1 ਦੇ इक्वल है। सेकंड है 2 क्रॉस 2 टाइप ਦੀ मैट्रिक्स, ਜਿਸ 'ਚ डायगोनल 1 है, दूसरे 0 है। ਇਹ 3 क्रॉस 3 टाइप ਦੀ मैट्रिक्स है, आई 1 1 तीनों है 1 ਦੇ इक्वल डायगोनल, बाकी सारे 0 ਦੇ इक्वल। कई बार अपन I1 नीचे 1 लिखते, I1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करीदा। ये 2 I2 मतलब 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी I3। नेक्स्ट एग्जांपल ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ अलग-अलग टाइप ਦੀ मैट्रिक्स ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ देखो पहले ये रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स ये सारे एलिमेंट 0 है, तो जीरो मैट्रिक्स है, जन नल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स जिस डायगोनल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਹੈ। स्केलर मैट्रिक्स ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀਤੀ, स्केलर मैट्रिक्स ਉਹ ਹੁੰਦੀ मैट्रिक्स ਜਿਹਦੇ डायगोनल एलिमेंट्स आपस ਵਿੱਚ इक्वल ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਹੁੰਦੇ। डायगोनल टाइप ਦੀ मैट्रिक्स ਨੂੰ ਹੀ स्केलर मैट्रिक्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। डायगोनल ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, डायगोनल च डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होंदी जिस डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होंदी है, सारे ए दे इक्वल है, 2 2 भी हो सकता है, 3 दे इक्वल भी हो सकता है। इन पर्टिकुलर जे ए दी वैल्यू 1 होवे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यूनिट मैट्रिक्स। ऐसे 2 टाइप होर हैगियां जो ਆਪਾਂ नहीं लिखिया सी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ते लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ डायगोनल ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ डायगोनल एलिमेंट्स ਕਿਹੜੇ ਆ, A D ਤੇ F। A ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 0 2, D ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 0, F ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ A B C D E F ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ट्रायंगल ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰ ट्रायंगुलर, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ डायगोनल ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੁੰਦੇ।
ऐसे लोअर ट्रायंगुलर लोड मतलब नीचे ट्रायंगल बनती पई है, इस कि मेन डायगोनल के उपर वाले एलीमेंट 0 होंगे, ए दे उपर तो कुछ नहीं हैगा, सी दे उपर एक एलीमेंट 0 है, एफ दे उपर 2 एलीमेंट है, ये 0 है, सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, ते आपां रो मैट्रिक्स देख ली, कॉलम देख ली, जीरो, स्केलर, यूनिट, यूनिट जां आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो उपर लिखिया सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नूं यूनिट मैट्रिक्स भी कहंदे आ। ओके, नैक्सट होर एग्जांपल्स दित्तियां हैं मैट्रिक्स दियां। पहले दी थी स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2 टाइप दी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नैक्सट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंदी है जिस नंबर ऑफ रो ते नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंदे, जिथे इक्वल है उन्हें स्क्वायर कहंदे आ, ते जिथे इक्वल नहीं है उन्हें आपां कहंदे रेक्टेंगुलर। जिस तरह आपां देखिया है कि रेक्टेंगल की हुंदा जिस नंबर दोनों रोज की जिहड़ी लेंथ है अलग अलग होंदी है, ठीक है, ओपोजिट साइड दी इक्वल होंदी है, लेकिन जिहड़ी एडजेसेंट साइड्स है उन्हां दी लेंथ इक्वल नहीं होंदी, उन्हें कहंदे रेक्टेंगल। ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिस नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंदे हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नैक्सट देखो सारे एलीमेंट 0 है, ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਹੈਗੇ 5, ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੈ, ਤੇ 3 cross 5 टाइप ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੋ ਹੈ ਤੇ 4 ਕਾਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿਲਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ, ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नैक्सट मैट्रिक्स है 3 cross 3 टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है, बाकी सारे 0 है, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हुण असीं करते हैं एक होर टर्म, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की हुंदा। ट्रांसपोज का मतलब हुंदा आपां की कहते मैट्रिक्स के उपर ना टी पा देने, आपां एक कैपिटल भी पाते, कई बार स्मॉल भी पाईदा, कई बार सिंपल डैश का सिंबल पा देने, सिंबल कोई भी पाओ, मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हुंदा की है, किसी मैट्रिक्स का आपां ट्रांसपोज लैने, किस तरह लैने आ, असीं की करदे अदी रोज नूं कॉलम बना दिंदे आ, यानी रो नूं कॉलम च इंटरचेंज करांगे ते कॉलम ऑटोमैटिकली रो च इंटरचेंज हो जाएंगे। जे साडी मैट्रिक्स आएगी उन्होंने कहने जी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। जिस आ मैट्रिक्स है ये फस्ट रो की है 1 2 4, इनू बना दिए फस्ट कॉलम 1 2 4, सेकंड रो है 4 6 1, ये सेकंड कॉलम बना दिए 4 6 1। आज ये आएगी ਇਹਦਾ ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख दो तो ਇਹਦਾ ट्रांसपोज ਇਹਦੇ ਕੋਲ आएगा। इंटरनल 3 cross 3 टाइप की मैट्रिक्स का लिखा 3 cross 3 टाइप की है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज लेना तो की करांगे रोज टू कॉलम इंटरचेंज करांगे। पहली रो ए बी सी ए बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से चेंज हो जाएगा। सेकंड रो देखो डी ई एफ, ये सेकंड कॉलम बन गया डी ई एफ। थर्ड है जी एच आई और थर्ड कॉलम बन गया जी एच आई, एक ही बन गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने नाल की हुंदा रो ते कॉलम्स आपस इंटरचेंज हो जांदियां ते ऑर्डर भी चेंज होंदा। जिस ए देखो साडी 2 रोज है 3 कॉलम है, 2 cross 3 टाइप दी मैट्रिक्स है, एक ही बन गई 3 cross 2 टाइप दी इंटरचेंज हो गई। नैक्सट भी ट्रांसपोज दी एग्जांपल दित्तियां ही हैं, ए 2 cross 3 टाइप दी मैट्रिक्स है दा ट्रांसपोज लिया होया ते फर्स्ट रो जिहड़ी हैगी फर्स्ट कॉलम बन गई है, सेकंड रो जिहड़ी हैगी सेकंड कॉलम बन गई। नेक्स्ट को 3 cross 3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ये 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उधर ट्रांसपोज ने ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। जैसा ए सा देखो फर्स्ट रो 1 2 3 ਇਹਦਾ फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो 4 5 6 ਇਹਦਾ सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो 7 8 9 ਇਹਦਾ थर्ड कॉलम बन गया। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ आएगा। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैगियां कि ਅਸੀਂ फस्ट हैगी है कि आप ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लीए, यानी पहले रो नू कॉलम चेंज करिए फिर कॉलम नू रो च बना दिए तो साडा सेम आ जाएगा, यानी 2 वाली ट्रांसपोज लैन नाल मैट्रिक्स सेम आ जाएगी। दूसरा हैगा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इस स्मॉल टी का यूज किया तो स्मॉल टी भी यूज कर सकते हो, कैपिटल टी भी यूज कर सकते हो। तो जे आप दोनों मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज लईए तो जां असीं पहले ट्रांसपोज लैके फिर सम करिए तो इक्वल हुंदा, यानी कोई फर्क नहीं पैंदा चाहे आप तुसी पहले ट्रांसपोज लै लो जां ट्रांसपोज लैन तो पहले ट्रांसपोज लैके फिर ऐड करो, जां पहले ट्रांसपोज लो पहले ऐड करके फिर उधर ट्रांसपोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज। सिमिलरली माइनस का भी इंज, चाहे पहले माइनस करके ट्रांसपोज लो जां ट्रांसपोज लैन तो बाद माइनस कर लो, देन सेम थिंग है, ठीक है। बस ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है
के मतलब कोई कॉन्स्टेंट है, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ए ਦੀ ट्रांसपोज इक्वल टू के ए दी ट्रांसपोज, यानी जे कोई कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट ए मैट्रिक्स है, ये कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करियो तो ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पैंदा, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ट्रांसपोज से कांस्टेंट वैसे ही मल्टीप्लाई रहेगा। इफ ए बी आर डिफाइंड, यानी ए नू बी ना मल्टीप्लाई किया जा सके तो ए बी दा ट्रांसपोज के इक्वल हुंदा, उल्ट जाता, पहले बी दा ट्रांसपोज इनटू ए दा ट्रांसपोज। अलग अलग करके कर दो चाहे इकट्ठा करके कर लो, लेकिन जो तुम अलग अलग करके करोगे तो तुहानू ऑर्डर बदलना पएगा, इत्थे ए बी है तो इत्थे क्या आ जाएगा बी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बाकी तुम समझ ज्यादा तद लगेगी जो आप ऐड सबट्रैक्ट ते मल्टीप्लिकेशन करांगे। नैक्सट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हुंदी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हुंदी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हुंदी जे आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लईए तो सेम मैट्रिक्स आ जाए। एग्जाम्पल दी है, ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, यदि ਇਹਦਾ ट्रांसपोज लवांगे तो की आएगा, देखो फर्स्ट रो है 1 1 -1, तो फर्स्ट कॉलम भी की है 1 1 -1, सेकंड रो की है 1 2 0, तो सेकंड कॉलम की है 1 2 0, फर्स्ट थर्ड रो की है -1 0 5, तो थर्ड कॉलम की है -1 0 5, यानी जे आप रो ਨੂੰ कॉलम ਚ भी चेंज कर दे तो सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ट्रांसपोज लवांगे तो सेम आएगा। दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हुंदी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुंदी जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लईए ते ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ मैट्रिक्स है उसका साइन बदल जाए, यानी ਉਹਦਾ नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव किंज होएगा ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैट्रिक्स जी नेगेटिव मैट्रिक्स की हुंदी, a negative matrix of A G is denoted by -a where -a equal to -aij, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ एलिमेंट ਦੇ साइन बदल देंगे सब ਦੇ। मैट्रिक्स A 1 0 2 0 0 -3 -4 6 1, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अब सारे एलिमेंट ਦੇ साइन बदल देंगे। जो भी मैट्रिक्स का नैगेटिव लेना आप सब दे एलिमेंट से साइन बदल देने, 1 -1 इक्वल -0 0 तक नैगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं बनता, इस करके सेम रहेगा। 2 -2 के इक्वल हो जाएगा, ए 0 0 सेम रहेगा, -3 जड़ा +3 बन जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, 6 -6 के इक्वल हो जाएगा, 1 -1 इक्वल हो जाएगा। तो ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ਆਪਾਂ मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साइन ਜਿਹੜੇ बदल जाएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जो आप ट्रांसपोज लईए तो सारे मैट्रिक्स के साइन बदल जाए। देखो ये मैट्रिक्स देखो किस टाइप की है, ਇਹਦਾ रो ਕਿਹੜੇ ਆ 0 1 -2, तो जो ਇਹਨੂੰ ट्रांसपोज ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲਮ भी की बन जाएगा 0 1 -2 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ नेगेटिव, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 की जगह -1 आ गया, 2 की जगह -2। इस तरह सेकंड रो देखो -1 0 3, जो आप साइन बदलेंगे भी बन जाएगा 1 0 -3, तो यदा कॉलम आ गया। थर्ड देखो 2 -3 0, यदा साइन बदलो -2 3 0, तो थर्ड कॉलम बन गया। यानी जो आप रो नू कॉलम च चेंज करते हैं तो साइन बदल जाते सब दे, ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इत्थे ये गल ध्यान रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिहड़े डायगनल एलीमेंट्स हमेशा 0 होंगे, क्योंकि ये एलीमेंट अपने दे नेगेटिव तदे होएगा जो ये 0 के इक्वल होएगा। ਹੁਣ एक एग्जाम्पल है कि जे साडी ये मैट्रिक्स दित्ती है सिमेट्रिक है, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ x ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ x, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ कहना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, चलो ਇਹਦਾ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने ਕੀ आएगा, फर्स्ट रो -1 2 3 ਇਹਦਾ फर्स्ट कॉलम बना देना, सेकंड रो 2 5 6 ਇਹਦਾ सेकंड कॉलम बना देना, थर्ड 3x7 ਇਹਦਾ 3x7 ਇਹਦਾ कॉलम बना देना। ये आ गया ਇਹਦਾ ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ਇਹਦੇ इक्वल ही हैगा, ਇਹਦੇ इक्वल करोगे तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आई -1 2 3 2 5 x 3 6 7। ਹੁਣ दो मैट्रिक्स इक्वल है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक है, ਅਸੀਂ करके आए हैं, ਇਹਦਾ मतलब कि x ਕਿਹਦੇ इक्वल है, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਕੀ ਹੈ 6, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया x ਜਿਹੜਾ 6 ਦੇ इक्वल होएगा। सिमेट्रिक ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, सिमेट्रिक ਦਾ मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ट्रांसपोज लेके दोनों इक्वल कर देना ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एलिमेंट्स ਨੂੰ इक्वेट कर देना। नेक्स्ट भी टाइप्स हैगियां,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हैगी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फर्स्ट रो 512, फर्स्ट कॉलम भी 512, सेकंड रो 137, सेकंड कॉलम भी 137, थर्ड रो 278, थर्ड कॉलम भी 278 सिमेट्रिक है। ये सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈਗੇ A11, A22, A33, A44, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈ। ये दो एग्जाम्पल दी डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल छोड़ के बाकी सारे जीरो है। ऐसा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब फर्स्ट रो 1 2 6 ये फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो 2 8 4 ये सेकंड कॉलम के इक्वल है, थर्ड 6 4 5 6 4 5 के इक्वल है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਧਰ 4 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।